Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. 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 Good afternoon. In the last class, we discussed about energy systems, right? Did you got the notes for that? Yes, ma'am. Okay, fine. In today's class, we'll be discussing about important biochemical tests that we do for sports people. Okay, importance of biochemical monitoring. Why do we have to do a biochemical monitoring? और क्या क्या पैरामीटर्स मापना चाहिए उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं. ठीक है? Is my voice is clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Don't worry. Yes, ma'am. What about the screen? Yes, ma'am. Visible. सी ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, डिटेल में बोलना बहुत मुश्किल होता है 1 आवर में. सो आई विल ट्राई टू कवर सुपरफिशियली. इफ यू हैव एनी डाउट्स पुट इट इन द चैट बॉक्स. देन आई विल शेयर द लिंक्स ऑफ वीडियोस एट द एंड ऑफ द क्लास, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस एंड यू विल गेट एन आइडिया. ठीक है? बहुत शानदार लपटी छूट रही. Recording in progress. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज का क्लास है बायोकेमिकल मॉनिटरिंग ऑफ एथलेट्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको पता चल जाता है व्हाट इज एक्सरसाइज बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिकल मॉनिटरिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट बायोकेमिकल मार्कर्स दैट आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स. ओके, आज का सेशन अटेंड करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा व्हाट इज एक्सरसाइज बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिकल मॉनिटरिंग एंड क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स को टेस्ट करने के लिए. ओके, सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक यू शुड हैव बेसिक नॉलेज अबाउट बायोकेमिस्ट्री. सो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? एनी आइडिया बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? टू एक्सप्लेन इन simple way, biochemistry is nothing but chemistry of living beings. लिविंग ऑर्गन्स में जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसके बारे में अध्ययन करने की शास्त्र है बायोकेमिस्ट्री. ओके, बायोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो भी हमारा बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल कंपाउंड्स होता है, उसके बारे में अध्ययन करने की शास्त्र है बायोकेमिस्ट्री. Basically in this we will study about the structure, function and metabolism of biomolecules. Biochemistry के अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं. ओके, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स को हम कहते हैं biomolecules. Is it clear? Any doubt in this? Biochemistry is nothing but chemistry of living organisms. In this we study about the structure, function and metabolism of biomolecules. What are biomolecules?
Proteins, carbohydrates, lipids, and nucleic acids are called biomolecules. Can you give any example for protein? कोई भी protein का एक example दे दीजिए. Put it in the chat box. I can see. Egg is the food. Okay, egg will have a protein called albumin. Okay. Okay, all of you are writing mushroom, dal, soya. These are all foods. Okay, which gives you protein. प्रोटीन का एक नाम बता दीजिए. मतलब मसल में क्या कौन सा प्रोटीन होता है? मसल इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन? मसल में कौन सा प्रोटीन होता है? एक्टिन, मायोसिन. कभी सुना है इसका नाम? एक्टिन, मायोसिन, troponin, tropomyosin. These are the proteins which makes your muscles, right? Hemoglobin का नाम सुना है? Hemoglobin. It is the protein which is present in your blood, which carries oxygen in your body, right? Fine. Carbohydrate का एक example दे दीजिए. Can you give one example for carbohydrate? Again, wheat is in a food, glucose. Ashta until. Yeah, you're right. Carbohydrate. Glycogen is a form of carbohydrate. Last class में हमने glycogen के बारे में discuss किए थे ना? So glycogen is nothing but a carbohydrate. Glucose is a carbohydrate. Potato will have starch. Starch is nothing but carbohydrate. Okay. Any other example? Lactose. The carbohydrate which is present in milk is a carbohydrate. Fructose, which is present in sugar, is a carbohydrate. Yes, these are all carbohydrates. Lipids के लिए एक example दे दीजिए. Lipid, yeah, maltose is also a carbohydrate. Anshu, you are right. Lipids का एक example दीजिए. Triglycerides, नाम सुना है last class में. Cholesterol, yes. Free fatty acids, these are all fats or lipids. Lipids are also called as fats. What are the examples for nucleic acids? Nucleic acids के लिए बारे में एक example दे दो. Nucleic acids मतलब ribonucleic acid, deoxyribonucleic acid. That is nothing but your DNA and RNA. हमारा बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के रूप में स्टोर होता है. ओके. ऑयल्स आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ फैट्स. ठीक है. सो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या अध्ययन करते हैं? ये प्रोटीन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है और इसका फंक्शन क्या होता है हमारा बॉडी में. ये खाने के बाद वो हमारा बॉडी में कैसा मेटाबोलाइज किया जाता है. कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है हमारा बॉडी में. वो खाने के बाद हमारा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कैसा मेटाबोलाइज किया जाता है, कैसा यूज हो जाता है. और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स की स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इसका फंक्शन क्या होता है, वो हमारा बॉडी में कैसा यूज किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करने की शास्त्र है बायोकेमिस्ट्री. इज दैट क्लियर? सो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स को हम ये भी कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स करके. ठीक है. एनी डाउट्स? Be active. Keep sending the messages. Is it clear? पहला वाला slide clear हो गया? Fine. Okay. Great. This slide shows about the organization of human body. हमारा body कैसा बनता है उसको describe करता है ये slide. Okay. What is the basic structural and functional unit of our body? What is the basic structural and functional unit of our body? Cell. हमारा body mainly बनता है cells से. Okay. सेल्स इकट्ठा होने से बन जाता है
टिश्यूज इकट्ठा होने से बन जाता है ऑर्गन्स टुगेदर मेक organ systems together make human body. हमारा बॉडी ऐसा बनता है, सेल्स ज्वाइन होने से टिश्यूज बन जाता है, टिश्यूज ज्वाइन होने से ऑर्गन्स बन जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स मिलाकर ऑर्गन सिस्टम्स को बनाता है, ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक और ह्यूमन बॉडी. कुछ ऑर्गन सिस्टम्स का नाम बता दीजिए, हमारा बॉडी में क्या क्या ऑर्गन सिस्टम्स होता है. Liver is an organ, heart is an organ. Yeah, digestive system. All the internal organs of digestive systems together make digestive system, right? Excretory system, respiratory system, nervous system, musculoskeletal system, circulatory system, exactly. Reproductive system, right? Endocrine system. Yeah, all these are systems. एक ऐसा बनता है अलग अलग organs join होने से, जुड़ा होने से बन जाता है organ systems. Here you can see circulatory system. Circulatory system में you can see heart, arteries, veins. Yeah, perfect. So ये सेल कैसा बनता है? आपको पता है सेल से टिश्यू बन जाता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनता है और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनता है. लेकिन ये सेल कैसा बन जाता है? With what the cell is made up of? Cell is made up of biomolecules. Cells बनता है biomolecules से. Biomolecules में क्या क्या आता है? Correct? Pujari? Yes. Proteins? Yeah. What you are telling is Ashta is its mitochondria is intracellular organelle. वो organelles भी बनता है मॉलिक्यूल से, बायोमॉलिक्यूल से. उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. सो आवर सेल इज मेड अप ऑफ मेनली 4 मॉलिक्यूल्स. इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स जो होता है वो मेनली बनता है बायोमॉलिक्यूल से. व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स? लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. ओके, नाउ you know what is biomolecules, right? Now we'll discuss about exercise biochemistry. Biochemistry अलग है, exercise biochemistry कुछ अलग है. Okay, so exercise biochemistry एक specialized science की branch है. उसमें exercise के दौरान हमारा body में कैसा changes हो रहा है आणुविक स्तर पर, molecular level में what changes are happening in our body when we are doing exercise, इसके बारे में अध्ययन करने की शास्त्र है exercise biochemistry. Okay, so how do you define exercise biochemistry? It's a branch of science which examines the effect of exercise at your molecular level. When you are doing this, dumbbell exercise, how your muscle protein is changing. आपका मसल में कार्बोहाइड्रेट की लेवल कैसा चेंज हो रहा है, आपकी सेल्स में ग्लूकोज की लेवल कैसा चेंज हो रहा है, राइट? हाइड्रेशन लेवल कैसा चेंज हो रहा है, क्या ये चेंज आपके परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है या बुरा है, इन सब के बारे में अध्ययन करने की शास्त्र है एक्सरसाइज बायोकेमिस्ट्री. इज इट क्लियर? So how do you define exercise biochemistry? It's a branch of science which examines the effect of exercise at molecular level. आणविक स्तर पर एक्सरसाइज की इफेक्ट कैसा पड़ रहा है उसके बारे में अध्ययन करने की शास्त्र है एक्सरसाइज बायोकेमिस्ट्री. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फाइन. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिकल मार्कर के बारे में. बायोकेमिकल मार्कर क्या होता है? कोई भी बायोकेमिकल कंपाउंड जो हम मापने से हमको हमारा हेल्थ कंडीशन के बारे में जानकारी मिल जाता है, उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल कंपाउंड. ओके, सो एनी बायोकेमिकल कंपाउंड that will alter in diseased condition,
ये डिसीज्ड कंडीशन में इसकी लेवल ऑल्टर हो जाता है. सो it will serve as an aid in the diagnosis of disease. इस कंपाउंड को हम कहते हैं बायोकेमिकल मार्कर. फॉर एग्जाम्पल I'll talk about ग्लूकोज. ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज होता है 60 to 110 या 70 to 110 mg per dl. ओके, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कितना होता है? 70 to 110 mg per dl होता है. ओके, जब हम ग्लूकोज मापते हैं, अगर ग्लूकोज की लेवल 180 आया है, इसका मतलब क्या है? ब्लड में ग्लूकोज की लेवल 180 हो गया. नॉर्मल रेंज है 70 to 110, लेकिन जब हम टेस्ट किया तो वैल्यू आया है 180. तो मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया. कौन सा स्थिति में ज्यादा हो जाता है? अगर आदमी को डायबिटीज है तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाता है, राइट? तो ब्लड ग्लूकोज इज नथिंग बट ए बायोकेमिकल मार्कर. डिसीज्ड कंडीशन में इसकी लेवल ऑल्टर हो गया. कौन सा डिसीज की कंडीशन में? डायबिटीज में इसकी लेवल ऑल्टर हो गया, ताकि ग्लूकोज को चेक करने से हमको डायबिटीज को डायग्नोज करने में हेल्प हुआ, राइट? सो इस तरीके की मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोकेमिकल कंपाउंड्स, बायोकेमिकल मार्कर्स. ओके, so can you give some examples of biochemical markers? Just like glucose, कुछ और टेस्ट का नाम बता दीजिए. कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है लैब में हमारा हेल्थ ठीक है या नहीं चेक करने के लिए? यूरिक एसिड. ब्लड प्रेशर अलग है, वो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है. ओके, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं. RFT मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट. या लिपिड प्रोफाइल, यस, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मापते हैं हम. हार्ट हेल्थ कैसा है ये देखने के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक करते हैं. या अमाइलेज की लेवल्स भी चेक करते हैं, लाइपेज की लेवल्स भी चेक करते हैं. और कुछ हीमोग्लोबिन टेस्ट, ब्लड में हीमोग्लोबिन कैसा रहा वो चेक करने के लिए हम हीमोग्लोबिन को मापते हैं. तो हीमोग्लोबिन को मापने से हमको क्या पता चल जाता है? क्या हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल्स नॉर्मल है या नहीं? अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो गया तो इसकी मतलब है अनीमिया है, राइट? या वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड. CBC, हीमोग्लोबिन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, RBC, सब कुछ आ गया. मैग्नीशियम, फास्फोरस, वेरी गुड. So all these are the biochemical markers. All these tests are nothing but biochemical markers. So that indicate our biological condition. Body's internal condition के बारे में जानकारी पाने के लिए ये help करता है. They help us to understand our body's internal condition and which can be measured in the blood. ये सब टेस्ट को हम करते हैं ब्लड में, right? Yeah. These are some biochemical markers which are used in sports medicine. Sports medicine में sports athletes के लिए ये सब टेस्ट को हम मापते हैं. Okay, what are those? Iron profile, just have a glance, then I'll be explaining about each and every test. Okay, names may be new for you, it's very difficult for you to remember all the names, but try to remember. Okay, these are the parameters that we test on regular basis, which include iron profile, kidney function test, lipid profile, serum enzymes, hormones, vitamins, minerals, electrolytes, and complete blood picture. These are some common tests. इसके अलावा हम liver function test को भी करते हैं. Okay. So आयरन प्रोफाइल के अंदर क्या क्या टेस्ट आता है? आयरन प्रोफाइल के अंदर आता है सीरम आयरन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सीरम फेरेटिन and transferrin saturation. These 4 tests comes under iron profile. Why do we check iron profile? Any idea? हम क्यों टेस्ट करना चाहिए आयरन प्रोफाइल को? आयरन की कमी है क्या? अनीमिया है क्या? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है क्या?
ये चेक करने के लिए हम आयरन प्रोफाइल को मापते हैं. ओके, क्लियर? देन किडनी फंक्शन टेस्ट. किडनी या आयरन ओवरलोड है कि ये देखने के लिए भी ये हेल्प होता है. एग्जैक्टली. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूड किडनी फंक्शन टेस्ट. इसके अंदर आता है यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन. ये क्यों मापते हैं हम? हमारा बॉडी में जो भी वेस्ट है उसको बॉडी से निकालने की काम कौन सा ऑर्गन सिस्टम की है? वेस्ट कौन सा ऑर्गन सिस्टम के द्वारा रिलीज किया जाता है? किडनीज, राइट? किडनीज विल रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. अगर किडनीज में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या होता है? ये जो वेस्ट हमारा बॉडी में बन रहा है वो ऐसा ही डेवलप हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है. वेस्ट हमारा बॉडी में बढ़ जाता है. ओके, सो ये जो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन ये जो है, दीज आर द वेस्ट मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. ये पूरा वेस्ट, मतलब इसको हम यूज नहीं कर सकते बॉडी में, इसको बॉडी से बाहर भेजना पड़ता है. ये काम करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि किडनीज. अगर किडनीज में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या होता है? ये वेस्ट यूरिन के द्वारा बाहर नहीं भेजा जाएगा. तो बिकॉज ऑफ दैट इन द ब्लड यूरिया लेवल्स, यूरिक एसिड लेवल्स एंड क्रिएटिनिन लेवल्स में इंक्रीज. ओके, so basically why do we test these parameters? To understand the kidney function. हमारा बॉडी में किडनी फंक्शन कैसा चल रहा है, ये ठीक चल रहा है या नहीं देखने के लिए हम यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को मापते हैं. ठीक है. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूड लिपिड प्रोफाइल. इसमें आता है ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि high density lipoprotein cholesterol. The full form of HDL cholesterol is high density lipoprotein cholesterol. Low density lipoprotein cholesterol and cholesterol HDL ratio. These are the parameters which comes under lipid profile. Why do we check the lipid profile? If fat is more in our blood, okay, these are the fat molecules which are present in our blood. अगर ब्लड में फैट ज्यादा हो गया तो क्या होता है? ये फैट हमारा ब्लड वेजल्स में जम जाता है. दिस फैट विल बी डिपॉजिटेड इन योर ब्लड वेजल्स जस्ट लाइक दिस. ओके, इफ फैट गेट्स डिपॉजिटेड इन द ब्लड वेजल्स, क्या होता है? ब्लड फ्लो में दिक्कत आ जाता है, ब्लड ठीक से फ्लो नहीं होगा. तो इसकी वजह से कभी कभी हार्ट अटैक हो सकता है, कभी कभी हार्ट अटैक हो सकता है. तो लिपिड प्रोफाइल को हम क्यों मापते हैं? टू अंडरस्टैंड द हार्ट हेल्थ. लिपिड प्रोफाइल पैरामीटर्स आर टेस्टेड टू to check the lipid status in the lipid metabolism in our body and to assess the heart health. We check lipid profile. Yeah, if cholesterol levels are more than the normal range, that can lead to myocardial infarction. Heart attack. Okay, we call it as heart attack in normal terminology. Okay, we also assess serum enzymes. हम ये सब पैरामीटर्स के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे. आई एम जस्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन, दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूड सीरम एंजाइम्स. इसके अंदर आता है क्रिएटिन काइनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. ये दोनों एंजाइम्स को क्यों मापते हैं हम? मसल हेल्थ के बारे में समझने के लिए. हमारा मसल्स में मोस्टली ये दोनों एंजाइम्स मोस्टली रहता है मसल के अंदर, क्रिएटिन काइनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. इसको कहते हैं क्रिएटिन काइनेज और सेकेंड वन इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ऑल्सो कॉल्ड एज LDH. ओके, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. एक्चुअली ये दोनों एंजाइम्स है, मैक्सिमम अमाउंट रहता है मसल के अंदर. ये मेनली मसल के अंदर रहता है. ब्लड में इसकी लेवल बहुत कम होता है नॉर्मल आदमियों में. ओके, लेकिन अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज किया, हेवी वेट्स उठाया या मैक्सिमम लोड की एक्सरसाइज किया तो क्या होता है? मसल डैमेज हो जाता है, मसल फाइबर की
डैमेज हो जाता है, इस कंडीशन में ये जो एंजाइम्स है मसल से लीक हो जाता है, मसल से बाहर लीक हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड में सीपीके और एलडीएच की स्तर बढ़ जाता है, ब्लड में इसकी लेवल बढ़ जाता है। तो ब्लड में सीपीके लेवल बढ़ गया, क्रिएटिन फास्फोकाइनेज या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की लेवल बढ़ गया, तो इसका मतलब है मसल में कुछ डैमेज हो गया। वो मसल डैमेज इंजुरी की वजह से भी हो सकता है, ज्यादा ट्रेनिंग लोड करने की वजह से भी हो सकता है, राइट। तो ये पैरामीटर्स मापने से हम लोगों को ट्रेनिंग लोड्स के बारे में पता चल जाता है, मसल इंजुरी के बारे में पता चल जाता है। अगर एक बार मसल इंजुरी हो गया तो रिकवरी कैसा हो रहा है, पूरी तरह रिकवरी हो गया या नहीं, वो भी पता चल जाता है, ठीक है। We also assess some hormones such as cortisol and testosterone. Cortisol और testosterone हम क्यों मापते हैं, हमारा बॉडी में स्ट्रेस कितना है और हमारा बॉडी में रिकवरी कैसा चल रहा है, हमारा बॉडी में ब्रेकडाउन और सिंथेसिस की बीच में संतुलन कैसा रहा, इसके बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। या Ashwardhan, you are right, testosterone helps in muscle development, muscle formation. Cortisol in excess may lead to muscle breakdown. So हमारा बॉडी में एक ब्रेकडाउन को, एक हार्मोन ब्रेकडाउन को ज्यादा कर देता है और एक हार्मोन सिंथेसिस को ज्यादा कर देता है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बीच में बैलेंस कैसा रहा, ये टेस्ट करने के लिए हम मापते हैं कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट वी आल्सो मेजर सम विटामिन्स लाइक विटामिन D3 एंड B12। विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है हमारा बॉडी में, आई वांट टू सी इन द चार्ट बॉक्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी, बोन फॉर्मेशन, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, राइट। तो विटामिन डी की कमी होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नो फंक्शन, vitamin D, sorry, it's not goiter, bone will become weak, yes, bone में mineral density कम हो जाता है, bone weak हो जाता है, इसकी वजह से stress fractures हो सकता है कभी कभी, right, या कैल्शियम लेवल्स कम हो जाता है हमारा बॉडी में। सो एथलीट्स के लिए इंजुरीज को प्रिवेंट करना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो विटामिन डी की कमी की वजह से इंजुरी होने की रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होने की रिस्क बढ़ जाता है। तो इसकी बोन हेल्थ कैसा रहा, एथलीट की बोन हेल्थ कैसा रहा, इसको चेक करने के लिए हम माप सकते हैं विटामिन डी, ओके, ठीक है। विटामिन B12 की काम क्या होता है हमारा बॉडी में, एनी आइडिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन B12? या ब्लड सेल्स फॉर्म होने के लिए, आरबीसी अच्छे से बनने के लिए B12 हेल्प होता है। और नर्वस फंक्शन के लिए डॉक्टर अमित मुंजाल, वेरी मच इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। नर्व फंक्शन के लिए भी ये हेल्प करता है, ओके, नर्वस सिस्टम ठीक से चलाने के लिए भी ये हेल्प करता है, राइट। सो to understand deficiency of B12, we can check B12 levels. So B12 and vitamin D deficiencies can occur in athletes. Vitamin D deficiency is very common. B12 deficiency can be seen in athletes who follow vegan diet, who follow pure vegetarian diet or vegan diet. In them B12 deficiency can be seen, okay, and that can lead to anemia. So we can check these two vitamins also. Apart from that, we can check folic acid also. We also check minerals such as calcium, phosphate, and magnesium. Why do we check? Because these minerals are very, very important for, your muscle health and for your recovery. Calcium, phosphate, and magnesium are important for muscular activity and for the recovery, even for bone function, to maintain energy levels. These are very important. अगर इन मिनरल की डेफिशिएंसी हो गया तो उसकी वजह से रिकवरी में प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके।
So we can also check these minerals. इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मापते हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड लेवल्स को भी हम मापते हैं, ताकि हम लोगों को हाइड्रेशन स्टेटस के बारे में जानकारी मिल जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स को मापने से हमको एथलीट की हाइड्रेशन कैसा रहा, ये सही मात्रा में पानी को ले रहा है या नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है। एंड वी ऑल्सो चेक कंप्लीट ब्लड पिक्चर। यू ऑल मेंशन CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, राइट? सो इसमें आता है RBC काउंट, WBC काउंट। WBC में अलग अलग तरीका का सेल्स होता है ना, उन सब का काउंट आ जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल्स पता चल जाता है ये करने से, प्लेटलेट की लेवल्स पता चल जाता है। ओके, सो दीज आर द कॉमन टेस्ट दैट वी डू इन बायोकेमिस्ट्री। इसमें कोई डाउट है? तो ये सब चेक करने से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल जाता है, क्यों करना चाहिए ये सब टेस्ट? ये सब टेस्ट चेक करने से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है एथलीट की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, वो ऑक्सीजन को कैसा कैरी कर पा रहा है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल्स कितना रहा, उनकी एंड्योरेंस कैसा रहा, ये पता चल जाता है। Malkit, you could not understand previous slide? And we also we can also understand about health and metabolism. How is the health of the athlete? How is his metabolism going on? उसकी बॉडी में सब रिएक्शंस ठीक चल रहा है या नहीं? इसको कुछ डेफिशिएंसीज है क्या, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है क्या, कुछ आयरन की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो हमको कैसे पता चलेगा? जब हम टेस्ट करते हैं तो पता चल जाता है, राइट? And we can also understand about bone and muscle health of an individual. बोन हेल्थ कैसा है, इसकी विटामिन डी की लेवल्स कैसा रहा, CPK लेवल्स कैसा है, मतलब ट्रेनिंग लोड्स वजह से ट्रेनिंग लोड्स के हिसाब से मसल के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है। ओके, ये सब पता चल जाता है। बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन है क्या, बॉडी में कुछ सूजन है क्या, वो भी पता चलता है बायोकेमिकल टेस्ट करने से। ओके, हमारा बॉडी में या एथलीट की बॉडी में फ्लूइड बैलेंस या हाइड्रेशन स्टेटस कैसा मेंटेन हो रहा है, कुछ डिहाइड्रेशन है क्या, इनकी ट्रेनिंग लोड और रिकवरी के बीच में बैलेंस कैसा रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना, ट्रेनिंग लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, रिकवरी कम होता है, तो इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग लोड अगर ज्यादा हो गया, रिकवरी टाइम नहीं मिल रहा होगा, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है एथलेट्स में? एनी आइडिया? मसल टेयर हो सकता है, ओवर ट्रेनिंग हो सकता है। दिव्यांशु, यू आर राइट. If loads are too high, recovery is not up to the mark, then it can lead to overtraining, right? And performance क्या हो जाता है, कम हो जाता है. So before overtraining could happen, we can predict it. We can understand what is happening in our body by doing biochemical evaluation. Yes, Sanyam, you are right. If overtraining is too much, it leads to decrease in performance. Okay. So बायोकेमिकल मॉनिटरिंग करने से हम लोगों को एथलीट की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसा रहा, इसकी हेल्थ और मेटाबॉलिज्म कैसा रहा, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा रहा, इज देयर एनी इन्फ्लेमेशन इन हिज बॉडी, हाउ इज हिज बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, हाउ इज हिज फ्लूइड बैलेंस, हाउ इज हिज बैलेंस बिटवीन ट्रेनिंग लोड्स एंड रिकवरी, ये सब इंफॉर्मेशन पता चल जाता है. इज दैट क्लियर? So based on the information, based on the utility, biochemical markers are divided into different categories, such as nutritional markers, muscle damage markers, bone health markers, metabolic markers, hormonal markers, and inflammatory markers. Okay, what are those nutritional markers? ये क्या होता है? These are the biochemical markers which tells about the nutritional status of an athlete. Nutritional markers मापने से हमको एथलीट की न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में पता चल जाता है, राइट? मसल डैमेज मार्कर्स को क्यों मापना चाहिए?
मसल डैमेज है क्या पता करने के लिए हम मसल डैमेज मार्कर्स को मापते हैं, ठीक है। बोन हेल्थ मार्कर्स चेक करने से बोन हेल्थ के बारे में पता चल जाता है। मेटाबॉलिक मार्कर्स विल गिव information about the metabolism of an athlete. How is his metabolism going on? उसके बारे में जानकारी मिल जाता है मेटाबॉलिक मार्कर्स को मापने से। हार्मोनल मार्कर्स आर मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट ओवर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बैलेंस बिटवीन ट्रेनिंग लोड एंड रिकवरी, ये देखने के लिए हम हार्मोनल मार्कर्स को यूज करते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स टेस्ट करने से हम लोगों को बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है तो पता चल जाता है। ओके, so biochemical markers are divided into different categories based on their application. Nutritional markers will give information about the nutritional status of an athlete. Muscle damage markers give an idea about muscle damage. Muscle damage markers will help us to diagnose the muscle damage. Bone health markers will give indication about the bone health of an athlete. Metabolic markers gives indication about the metabolism of an athlete. Hormonal markers are tested to use, to understand, balance between training load and recovery. And inflammatory markers would be helpful to identify inflammation. Is that clear? इसमें कोई डाउट है? Reasons for inflammation is, damage of cells. When you are doing exercise, many cells will get damaged. That will trigger the inflammation. Okay. When you are doing heavy training in intensity exercises, that is quite common. So first we'll discuss about nutritional markers. Okay. So athletic performance and recovery from exercise, both are very much linked with their nutrition. Okay, I will explain about hormonal markers in detail, no issue. That is just a definition, okay? Athletic performance and recovery, both are linked with nutrition. If diet is not good, energy levels will be less. If energy is less, performance would be less. If post-exercise diet is not good, recovery will be affected, right? So both performance and recovery of an athlete, health of an athlete also, are directly linked with his nutrition, right? Do you agree with this? And nutritional deficiencies are very common among the athletes. What deficiencies are commonly seen? Which deficiencies are commonly seen in the athletes? Vitamin D ki deficiency, calcium ki deficiency, iron, folic acid and B12 deficiency, deficiency of vitamin E, deficiency of B complex vitamins, all these can be seen in athletes, right? If vitamin D levels are low or calcium levels are low, what can happen? What will happen to the athlete? Bones will become weak. So injury risk will increase, stress fractures may increase, right? So it is very important to test vitamin D levels and calcium levels. अगर आयरन, फोलिक एसिड और B12 की डेफिशिएंसी है, आयरन का डेफिशिएंसी है या फोलिक एसिड या B12 की डेफिशिएंसी है, तो मेनली क्या प्रॉब्लम हो सकता है? It can lead to anemia, hemoglobin levels will come down. It can lead to fatigue, थकान जल्दी आ जाता है. B12 is also linked with nervous function, right? So it can also lead to cognitive impairment and immune deficiency. Immunity भी कम हो सकता है, ठीक है? So iron, folic acid, B12 की deficiency में anemia, fatigue, cognitive impairments और immune deficiency देखा जाता है. Yeah, hair loss is also a symptom of iron deficiency. Okay. Next, B complex vitamin important for energy production in our body. एनर्जी रिलीज होने के लिए रिएक्शंस होना चाहिए हमारा बॉडी में.
रिएक्शंस ठीक से होने के लिए चाहिए होता है बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स। ओके, तो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो गया तो एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस डिक्रीमेंट्स देखा जाता है। ओके, विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन फंक्शन। कोई भी मेम्ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करने में विटामिन ई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Cells are covered with membranes, right? Suppose if this is a cell is covered with a membrane. Muscle fiber also covered with a membrane. If vitamin E levels are low, then muscle membrane will become weak. Muscle membrane will become weak. So when you are doing heavy training loads, muscle membrane may get breaked, right? So that leads to muscle damage. Muscle fibers are also made up of tiny, covered with membranes, right? Have you studied about the cardiac muscle structure, skeletal muscle, smooth muscle? They're all covered with the membranes. Looks like this, fibers with the nucleus. So they're also covered with a membrane. So membrane means any membrane. It can be muscle membrane, or it can be, RBC membrane. Red blood cells are also covered with a membrane, or it can be any other cell membrane. So for every membrane structure, vitamin E is important. If vitamin E levels are less, the cell membranes will break down. Means automatically your cells are breaking down. If cells are getting weak, obviously your tissues will be affected. Your tissues are affected means your organs will be affected, right? So one best example is breakdown of RBC membrane can lead to hemolysis. Breakdown of RBC can lead to hemolysis, that decreases hemoglobin levels and lead to anemia. If your muscle membrane gets breakdown, that leads to muscle injury, right? So these are the common markers, nutritional markers that are used in sports medicine, which include iron, ferritin, magnesium, calcium, phosphate, D3 and B12. Make a quick note of it. Iron, ferritin, calcium, phosphate, magnesium, D3 and B12. These are commonly used nutritional markers. Okay. So why do we check iron levels? What is the function of iron in our body? Anybody? What is the function of iron in our body? What does it do? It is important for RBC formation. It is important for hemoglobin synthesis. Okay. Iron is a part of hemoglobin. In our body, hemoglobin is the protein which is present in RBC. RBC means red blood cells. Hemoglobin is the protein which is present in RBC. Hemoglobin बनने के लिए we need iron. Iron is a part of hemoglobin. If iron is less, automatically your hemoglobin levels will be less. So you will receive less amount of oxygen to your tissues. If oxygen supply is less, energy production would be less. Because why? Because we need oxygen for aerobic mechanism, right? So if energy is less, then performance would be less. Clear? Fe or iron is a part of hemoglobin. So we need iron to make hemoglobin. Hemoglobin is a protein which is present in RBC, which transports oxygen in our body from tissue, lungs to tissues. Okay. Along with this iron, we also estimate ferritin. What is ferritin? Ferritin is a protein which stores iron in your liver. Ferritin is a protein. Suppose this is ferritin, it will store many iron molecules in it. Okay, this is a storage form of iron. Ferritin is the storage form of iron. It is just like your bank balance. You have more bank balance means you can survive for a longer period when you are not getting salary, right?
Same way, see, daily you will consume iron. Today you have taken green leafy vegetables, non-veg, so you got iron into your body. So some amount of iron will be stored in the form of ferritin. And some amount will be used for RBC formation. It will be used for RBC formation, matlab hemoglobin formation. And some amount can be used for myoglobin formation. Myoglobin also requires iron. What is myoglobin? Where it is present? Any idea? कभी सुना है myoglobin के बारे में? Myoglobin is the protein which is present in muscles. Hemoglobin is the protein which is present in RBC. Myoglobin is the protein which is present in muscles. All of you please read about myoglobin. It's very important. Okay. Fine. So when you eat iron rich food, some amount of iron will be used in your body and some amount will be stored in the form of ferritin. So suppose tomorrow you did not eat any iron rich food. Then this ferritin will release iron into your blood. And this iron will be used for your RBC formation and for myoglobin formation. Okay. So ferritin is nothing but storage form of iron. You have more ferritin means more backup of iron. Is that clear? Apart from that, you will measure. See, iron deficiency anemia is very, very common among the athletes. These are the iron rich foods you should try consuming. Okay. And there are some tricks to increase the iron absorption in our body. How to increase the iron absorption, what to do to increase iron absorption and what not to do. Okay. Always consume iron along with vitamin C rich food. Suppose you are eating non-veg, squeeze lemon onto that. Okay. So when you squeeze lemon, non-veg will give good amount of iron and protein. And this vitamin C which is present in lemon will increase the absorption of iron. That is one way to increase the iron absorption in our body. And you mix vegetarian and non-vegetarian diet, foods together and eat. Don't depend only on non-vegetarian food. Don't depend only on vegetarian food. That is one trick to increase the iron absorption. Okay. And cooking in iron utensils. Now all non-stick tawas are coming. Okay. But otherwise, early in olden days, we used to cook many recipes in iron utensils. That will increase the iron availability in the food. Okay. And then what we are not supposed to do? We should not drink tea, coffee or cola immediately after food consumption. After having lunch and dinner, don't drink tea, coffee or cola immediately. Why? Because these molecules, these compounds will have some chemicals which decrease the iron absorption. Clear? These are the iron rich foods. You can make a note of it. And these are the do's and don'ts to increase the iron absorption. So iron deficiency anemia is very common in India and it's very common among athletes. So what will happen if there is iron deficiency? Your hemoglobin synthesis will be affected. Your RBC formation will be affected. So this is the normal blood with good amount of RBC. This is anemic blood where the RBC count is less, red blood cell count is less, and hemoglobin content is less. Hemoglobin content is less. What will happen? See, iron deficiency होने की वजह से anemia हो सकता है. Ranpal is asking to repeat it in Hindi, so I'm again repeating it. Okay. So if your diet is having very less amount of iron, अगर आप iron rich खाना को नहीं खा रहा है, तो क्या होता है? आपका बॉडी में आयरन की लेवल कम हो जाता है. इसकी वजह से आरबीसी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में प्रॉब्लम हो जाता है. इसकी वजह से हो सकता है अनीमिया. अगर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो गया तो उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. ओके.
बेसिकली अनीमिया में क्या होता है, अनीमिया में आरबीसी काउंट कम हो जाता है, ब्लड में लाल रक्त कणों की काउंट कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाता है ब्लड में। तो ये दोनों होने की वजह से क्या हो सकता है, ऑक्सीजन डिलीवरी ठीक से नहीं होता है। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन ठीक से डिलीवर नहीं होगा, इसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगा और परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जल्दी थकान हो जाता है, डिजीनेस हो जाता है, चक्कर आना ऐसा हो जाता है, कभी कभी फेंट भी हो सकता है, मसल वीकनेस, पाल्पिटेशंस, आपका हार्ट रेट आपको सुनाई देता है, आपका हार्ट बीट आप सुन सकते हैं, सब पाल्पिटेशन हो जाता है, फेटिग जल्दी आ जाता है, ब्रीथ ज्यादा हो जाता है। you know when you are having anemia, अगर थोड़ा तो like if you run, you start taking very rapid breathing, that is one of the symptom of anemia. okay, performance कम हो जाता है, so ये सब symptoms आप anemia में देख सकते हैं। ओके, या बेसिकली एंड्योरेंस कम हो जाता है अनीमिया होने की वजह से। तो हीमोग्लोबिन लेवल्स मापने से, आयरन की लेवल्स, आयरन प्रोफाइल पैरामीटर्स की लेवल्स मापने से हम लोगों को एथलीट की एंड्योरेंस कैसा रहा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसा रहा, ये पता चल जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम आयरन एंड फेरेटिन वी आल्सो टेस्ट कैल्शियम, फास्फेट एंड मैग्नीशियम. These are very important for our bone health, muscle health, and for recovery in athletes. If you see calcium plays very important. It performs many functions in our body. It is important for bone health, it is important for muscle health, it is important for heart health. ब्लड कोएगुलेशन होने के लिए, ब्लड जमने के लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है, नर्वस फंक्शन के लिए भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, और सेल्स में सेल्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन पास होता है उसके लिए भी कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, या अगर ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम हो गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो मतलब लो, ब्लड में अगर कैल्शियम की लेवल कम हो गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया होने की वजह से बोन्स वीक हो जाता है, टेटनी नाम की एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसमें मसल्स ट्रेमा हो जाता है, आप आपका मसल स्टेबल नहीं रहता है, ट्रेमर्स होता है। ओके, एंड हाइपोकैल्सीमिया आल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इंजुरीज, इंजरी होने का रिस्क बढ़ जाता है। बोन देखो स्ट्रांग नहीं है, वीक हो गया, कैन बेंड, इट कैन ब्रेक। ओके, तो कैल्शियम लेवल्स कैसा है बॉडी में कैसा पता चल जाता है, टेस्ट करने से ही पता चल जाता है। Phosphate is important for your bones and it is also a part of ATP. ATP बनने के लिए भी फॉस्फेट चाहिए, मतलब आपका एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए भी फॉस्फेट हेल्प होता है। तो फॉस्फेट लेवल्स को मापना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एथलीट्स के लिए। और मैग्नीशियम का रोल क्या होता है हमारा बॉडी में, हमारा बॉडी में लगभग 300 रिएक्शंस होने के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। ओके, मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो गया तो बॉडी में रिएक्शंस ठीक से नहीं चलता है, तो एनर्जी ठीक से नहीं बनता है। और एक इम्पॉर्टेंट रोल है मैग्नीशियम की मसल रिकवरी, मसल रिकवरी होने के लिए भी मैग्नीशियम हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो मसल ठीक से रिकवर नहीं होगा। देखो, मसल कंट्रैक्शन होने के लिए कैल्शियम चाहिए और मसल रिलैक्स होने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गया तो उसकी वजह से मसल वीकनेस हो सकता है, मसल स्पैज्म्स हो सकता है, और सीके लेवल्स चेंज हो सकता है। सीके मतलब लैटिन काइनेज। Then next group of parameters include electrolytes. Electrolytes हम क्यों मापते हैं, हमारा हाइड्रेशन स्टेटस कैसा रहा ये देखने के लिए। तो डिहाइड्रेशन की मतलब क्या होता है, बॉडी में पानी की कंटेंट कम हो गया तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। इनटेक कम है, आउटपुट ज्यादा हो गया,
तो उसको उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन है क्या, ये देखने के लिए हम माप सकते हैं सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ठीक है। We also test vitamins such as vitamin D and B12. विटामिन डी का रोल क्या होता है हमारा बॉडी में, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। विटामिन डी कम हो गया तो ये देखो, जस्ट ऑब्जर्व दिस एरिया, बोन्स आर बिकमिंग वीक, बोन्स में कैल्शियम डिपोजिशन कम हो रहा है क्योंकि विटामिन डी कम हो गया। सो इसके वजह से कैल्शियम डिपोजिशन कम हो गया तो बोन्स वीक हो रहा है, फ्रैक्चर्स हो रहा है, राइट। बोन्स में गैप ज्यादा हो रहा है, स्पॉन्जी बन रहा है बोन्स, राइट। तो विटामिन डी लेवल्स क्यों मापते हैं हम, बोन हेल्थ के बारे में पता करने के लिए विटामिन डी लेवल्स को मापते हैं। हमारा बॉडी में B12 की रोल क्या है, आरबीसी को बनाना, आरबीसी को स्वस्थ रखना, ओके। B12 की डेफिशिएंसी हो गया तो ब्लड में आरबीसी की साइज बढ़ जाता है, आरबीसी की साइज बढ़ जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन की कंटेंट कम हो जाता है, इसके वजह से एक तरीका की अनीमिया हो सकता है, उसको हम कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। इसमें साइज, आरबीसी की साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, इसी की वजह से उसको हम कहते हैं मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूड मसल डैमेज मार्कर्स। ये पैरामीटर्स चेक करने से मसल हेल्थ के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। I'm just trying to speed it up because time is very less, right? So muscle damage, you can see the diagram. Muscle damage को identify करने में कौन सा पैरामीटर्स हम मापते हैं, serum enzymes such as creatine kinase and lactate dehydrogenase, myoglobin, this is the protein which is present in muscles, and myosin heavy chain fragments. Myosin क्या है, क्या होता है मायोसिन, कभी सुना है मायोसिन के बारे में? This is a protein present in muscles. Very good, Pujari. Yeah, this is the protein which is present in muscles. So these are the markers tested to know muscle damage. What are those? Serum enzymes such as creatine kinase and lactate dehydrogenase, myoglobin and myosin heavy chain fragments. ठीक है? So muscle damage क्यों होता है? First of all, when you are doing exercise, muscle damage is very common, right? Where ज़्यादा लोड उठाया, ट्रेनिंग लोड ज़्यादा हो गया, फास्ट हाई इंटेंसिटी में कुछ वर्कआउट किया है या गिर गया एक्सरसाइज के दौरान, इन सब स्थिति में मसल डैमेज कॉमनली होता है, राइट। तो मसल डैमेज हो गया तो मसल के अंदर जो चीज है वो बाहर आ जाता है, मसल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बाहर ब्लड में रिलीज हो जाता है, राइट। तो इन द सेम वे मसल के अंदर जो एंजाइम्स होता है वो भी ब्लड में रिलीज हो जाता है, इसके वजह से ब्लड में इसकी लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में इसकी इस मॉलिक्यूल्स की लेवल, एंजाइम्स की लेवल बढ़ जाता है। So we can make use of these compounds to detect muscle damage. Okay, for example CPK. इस ग्राफ में आप देख सकते हैं रेस के पहले और रेस के बाद CPK लेवल्स कैसा रहा अलग अलग आदमियों में। तो रेस के पहले CPK की लेवल्स लगभग 200 के आसपास था, लेकिन रेस खत्म होने के बाद हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग मात्रा में CPK की लेवल्स बढ़ गया, कुछ एथलेट्स में तो 4000 से ज्यादा हो गया ये, राइट। तो इसका मतलब क्या है, रेस के बाद इनमें मसल फाइबर की माइक्रो ट्रामा ज्यादा हो गया बाकी लोगों से कंपेयर किया तो कभी तो सेम वे एथलेट्स में भी कुछ एथलेट्स में नॉर्मल रहता है CPK की लेवल सेम एक्सरसाइज करने के बाद, कुछ एथलेट्स में
CPK लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब क्या है, ये जो ट्रेनिंग लोड दिया गया है वो एथलीट के लिए, उस पर्टिकुलर एथलीट के लिए थोड़ा ज्यादा रहा। तो ये टेस्ट करने से आप ट्रेनिंग लोड्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं, राइट, और मसल डैमेज को जल्दी निर्धारण भी कर सकते हैं। What are those enzymes? CPK and lactate dehydrogenase. Watch the video for more information on this topic. CPK is the enzyme involved in phosphagen energy system. जब क्रियाटिन फॉस्फेट बनता है, वो रिएक्शन होने के लिए क्रियाटिन काइनेज यूज होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ phosphagen energy system. Okay, and lactate dehydrogenase is part of your anaerobic glycolytic system. These are the enzymes which which are helpful for your anaerobic energy systems. Okay, then myoglobin. Myoglobin ये प्रोटीन है, वो मसल्स में रहता है। इसका काम क्या होता है, मसल में ऑक्सीजन को स्टोर करना, मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर कर देता है। अगर जरूरत पड़ा तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, तो इससे एनर्जी बन जाएगा। ओके, सो इट इज लाइक बैंक बैलेंस फॉर ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल्स व्हिच स्टोर्स ऑक्सीजन इन आवर मसल्स। तो नॉर्मली ब्लड में मायोग्लोबिन नहीं रहता है, लेकिन अगर मसल डैमेज हो गया, किसी की वजह से मसल डैमेज हो गया, तो मायोग्लोबिन मसल से बाहर आ जाता है। ओके, तो ब्लड में इसकी लेवल बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये मायोग्लोबिन किडनीज के द्वारा एक्सक्रीट भी किया जाता है। इस स्थिति में आपका यूरिन डार्क रेडिश ब्राउन दिखता है। अगर इस ग्रुप में कोई एथलीट है तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर, लॉन्ग डिस्टेंस रन करने के बाद उनका यूरिन बहुत डार्क हो जाता है, कभी कभी रेडिश ब्राउनिश दिखता है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हेवी एक्सरसाइज मायोग्लोबिन मसल से बाहर आगे जाता है, वो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, तो यूरिन की कलर चेंज होता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोग्लोबिनूरिया। यूरिन में मायोग्लोबिन अगर एक्सक्रीट हो रहा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोग्लोबिनूरिया। ब्लड में अगर मायोग्लोबिन की लेवल नॉर्मल से बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है? मसल डैमेज हो गया। यूरिन में मायोग्लोबिन निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है? मसल डैमेज हो गया। ओके, और थर्ड parameter for muscle damage marker is myosin heavy chain fragment. As you all know, muscles are mainly made up of two proteins, actin and myosin. Structural proteins, right? Actin and myosin. So myosin will have heavy chains, light chains. So when these chains are damaged, when muscle damage occurs, obviously these chains will break down, right? These chains also will break down, and these chains will be released into the blood. So blood में myosin heavy chains का fragments दिख रहा है, तो इसका मतलब है muscle damage हो गया. So this also can be used as a diagnostic marker to understand muscle damage. And to know the bone health, we can estimate calcium, phosphate and vitamin D, because these three are very important for bone health. So अगर vitamin D की कमी हो गया तो bone ऐसा बन जाता है कुछ. This is a normal bone with more of minerals. This is the bone with vitamin D deficiency. Here you can see more gaps. Gaps ज़्यादा हो गया, mineral content कम हो गया, तो bone spongy बन जाता है, उसके वजह से fractures जल्दी हो सकता है. ठीक है? So मेटाबॉलिज्म को बारे में जानने के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं all these parameters: ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स को हम मापते हैं. मेनली ग्लूकोज टेस्ट करने से हमको एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में जानकारी मिल जाता है. ओके, सो ग्लूकोज अच्छा है ब्लड में, मतलब एनर्जी लेवल्स अच्छे से मेंटेन होगा. एक्सरसाइज के दौरान
क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाता है। एक्सरसाइज के दौरान ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाता है, तो उसकी वजह से व्हाट विल हैपन, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो फर्स्ट ऑर्गन विच इज अफेक्टेड इज योर ब्रेन। ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ओके, सो यू विल एक्सपीरियंस डिजीनेस, you will start sweating, you will get headache and you may faint, चक्कर हो जाता है। exactly, तो ग्लूकोज एस्टिमेट करने से हमको एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में जानकारी मिल जाता है। बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज हम चेक कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल को हम क्यों टेस्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड में अगर लिपिड लेवल ज्यादा हो गया तो, ब्लड में लिपिड पैरामीटर्स ज्यादा हो गया तो ब्लड वेजल्स के अंदर लिपिड ऐसा जमा हो जाता है। ओके, ऐसा जमा होने से क्या हो गया, ब्लड वेजल नैरो हो गया। ब्लड वेजल, यहाँ ब्लड पास होने के लिए जगह ही नहीं है, राइट, तो ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो रहा है। सो व्हेन triglyceride levels are high in your blood, cholesterol levels are high in your blood, or bad cholesterol, LDL cholesterol levels are high in your blood, that leads to a plaque formation in your arteries. We call it as atherosclerosis. This condition is called as atherosclerosis. अगर जो ब्लड वेसल हार्ट मसल के लिए ब्लड को सप्लाई करने वाला है, अगर उस ब्लड वेसल में ये प्लेक फॉर्म हो गया, this is the blood vessel which supply blood to your heart. okay, अगर उस वेसल में ये प्लेक फॉर्म हो गया, ये नैरो हो गया ये, तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट मसल को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, उसकी वजह से हार्ट मसल की डेथ हो जाता है। इसी को हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। सेम थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट अटैक। तो लिपिड प्रोफाइल हम क्यों चेक करते हैं, हार्ट हेल्थ कैसा है ये असेस करने के लिए, और हमारा बॉडी में लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसा रहा है ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम लिपिड प्रोफाइल पैरामीटर्स को मापते हैं। ठीक है, we check urea, uric acid and creatinine to understand about kidney function. These are all waste products, शरीर से बाहर जाना चाहिए, that is the function of kidneys. अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इन सब का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और ब्लड टॉक्सिक हो जाता है। ब्लड में इसकी लेवल बढ़ गया तो ब्लड टॉक्सिक हो जाता है, इसकी वजह से योर ब्रेन विल स्टॉप वर्किंग, ओके, अदर ऑर्गन्स में फेल, राइट। Then last group, I think last but one, I'll take 10 more minutes, please have patience, okay, 5 to 10 minutes more, okay. Next group of parameters include hormonal markers. किसी ने पूछा है हार्मोनल मार्कर्स के बारे में एक्सप्लेन करो मैडम करके। सो इसमें मेनली टेस्ट करते हैं हम कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को। ओके, कॉर्टिसोल का दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन। हमारा बॉडी में फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। What will happen? Cortisol levels will increase when you have more stress. इसको हम कहते हैं cortisol. It is also called as stress hormone क्योंकि stress condition में इसका level बढ़ जाता है. And it is also called as catabolic hormone. It is also called as catabolic hormone. Catabolic means breakdown. क्या breakdown करता है ये? Catabolic means breakdown. What will break down if cortisol levels are high? If cortisol levels are high, your protein will break down. Your muscle protein will be reduced. Your protein will break down, will become, into amino acids if cortisol levels are high. Second hormone that we measure is testosterone. What is the function of testosterone? What is the function of testosterone? It is anabolic hormone. Anabolic means muscle growth के लिए help करता है. Okay, it is not feel good hormone. It is anabolic hormone. If testosterone levels are more protein will be synthesized in your muscles, so your muscles will become strong. Okay. If cortisol is more, protein will break down into your muscles, so your muscles will become weak. Muscles will become weak. So cortisol is called as catabolic hormone
testosterone is called as anabolic hormone. Okay. So what will happen when you are doing training? When you are doing training, your cortisol levels will increase. Sorry, reverse order में लिखा है. When you are doing, cortisol levels will increase. ऐसा cortisol level बढ़ जाता है. When you are taking recovery, cortisol levels कम हो जाता है. Next training के दौरान cortisol level बढ़ेगा, recovery के दौरान cortisol level कम हो जाएगा. Normally ऐसा होना चाहिए वेव. लेकिन अगर आपका ट्रेनिंग लोड बहुत ही ज्यादा रहा तो कैसा होता है? वेव बढ़ जाता है कॉर्टिसोल ट्रेनिंग के दौरान. रिकवरी ठीक नहीं हुआ तो थोड़ा ही कम होगा, फिर से ट्रेनिंग लोड, फिर से बढ़ेगा, फिर से रिकवरी, लेकिन पूरा नहीं है रिकवरी. सो ऐसा होता है प्लाटू. कुछ ऐसा होता है रेस्पॉन्स. तो इसमें क्या होता है? अगर ट्रेनिंग लोड ज्यादा है, रिकवरी की टाइम कम है, तो मसल ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाता है, सिंथेसिस कम हो जाता है. तो मोस्टली कॉर्टिसोल की लेवल एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाता है. टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है रिकवरी और स्लीप. इफ यू स्लीप प्रॉपरली or if you do resistance training, your testosterone will increase. Okay. So if your training loads are high and recovery is less, your muscle breakdown will be more, synthesis will be less. Okay. So in that case, what will happen? Your muscle will become weak. Your muscle will become weak and you will become like this and leads to overtraining. So overtraining को आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली हम मापते हैं दो हार्मोन्स को. वन इज कॉर्टिसोल एंड द अदर वन इज टेस्टोस्टेरोन. आफ्टर दैट we'll make a ratio, testosterone cortisol ratio. This will give information about the balance between training load and recovery. Is that clear? You can watch the video for more information regarding this. And inflammatory markers. So inflammation क्यों होता है हमारा बॉडी में? ट्रेनिंग के बाद छोटा मोटा सेल डैमेज कॉमनली होता है. ओके बॉडी में. तो उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी इन्फ्लेमेशन को शुरू कर देता है. तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए. थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन अच्छा है रिकवरी के लिए, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गया तो वो अच्छा नहीं होता है. तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है क्या, ये पता करने के लिए हम इन सब पैरामीटर्स को माप कर सकते हैं. Best parameter is white blood cells, or you can also measure C-reactive protein, or you can measure cytokines. ये research parameter है, ये सब labs में available नहीं होता है. So best marker to understand inflammation is white blood cells along with CRP. Okay. Normally WBC का count हमारा blood में इतना होता है 4,500 to 11,000. बट अगर इन्फ्लेमेशन है तो ये ऑल्टर हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है. सो दैट इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. एंड सीआरपी एक प्रोटीन है, वो हमारा लिवर में सिंथेसाइज किया जाता है. अगर ब्लड बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो सीआरपी की लेवल बढ़ जाता है. बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है तो सीआरपी की लेवल बढ़ जाता है. सी दिस इज द ग्रीन जोन. ग्रीन जोन मीन्स नॉर्मली इतना होना चाहिए, तो कभी कभी एथलेट्स में बहुत ही हाई हो जाता है. दैट इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन. ओके. तो वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन है आयरन अनीमिया. इन्फ्लेमेशन बहुत दिनों के लिए है तो आयरन अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है. So this is the importance of biochemical monitoring and different biochemical markers that are used in sports medicine. So biochemical monitoring करने से हमको न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस के बारे में एथलीट की पता चल जाता है. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसा रहा वो भी पता चलेगा. बोन हेल्थ और मसल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है. ओवर ट्रेनिंग एंड को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है. डिहाइड्रेशन और इन्फ्लेमेशन को आइडेंटिफाई करने में भी ये हेल्प करता है. So we can prevent the overtraining by doing this testing.
We can detect anemia, muscle damage, dehydration, inflammation, and other disorders in athletes by doing biochemical evaluation. So if you have any doubt on this topic, you can mail me on this mail ID, ushakaniganti@gmail.com. Afternoon, you will be having discussion class. So you can attend discussion for more information. Okay. Now I'll share the video links. कोई डाउट है इसमें? Any doubt in this topic? Links have been shared. You can watch the videos to get more knowledge in this regard. Okay. PPT and notes will be shared. Notes वैसे भी मिल गया है. PPT I'll be sharing. Okay. How to fast recover muscle by diet? I think he means how to recover quickly with the help of diet. For that you need to follow post event nutrition. Okay, event के बाद या competition के बाद सही composition में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 4:1 रेशियो में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सेवन करने से जल्दी रिकवरी हो जाता है. ओके. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया तो वो आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो सकता है, उसके वजह से हार्ट अटैक हो सकता है. ओके. एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन विल बी सेम विटामिन. ये जो वैल्यूज दिया गया है दैट इज एप्लीकेबल फॉर athletes who are between 14 to 18, 14 to 30 years of age. For them it is same. Any other doubt? See, anxiety is more related with the psychology. Okay. First you need to consult the psychologist, somebody like Shekhar, I think, in shooting, he's asking something about anxiety. So you need to control your heart rate. You can do meditation, you can consult psychologist, and you can participate in more competitions to get used to it. That is also one way. When the more you acclimatize, it will become less. How to decrease triglyceride level? You have to make changes in your diet. You have to follow good lifestyle. Decreasing fat intake, decreasing carbohydrate intake if you are consuming excess, and walking, jogging, and regular activity would help you to decrease the triglyceride levels. How to improve kidney function? Don't do anything. If your kidneys are functioning normally, let it continue. Okay. But if you have any abnormality, if the values are high, consult the doctor with your report. They will tell you exactly why it is happening. How to measure all the tests? You need to go to the lab, you need to give your blood, then technician will collect the blood and measure all the parameters. Okay. We do all these tests from your blood.
So for that, mostly fasting blood required hota hai. After overnight fasting, blood will be collected and all the parameters will be tested from the blood. Reasons of excess fat deposit. Again, lifestyle. If your food habits are not good, food timings are not good, you are consuming alcohol, smoking, is there any genetic history? All these could lead to excess fat in the blood and that can lead to cardiac arrest. And it can be genetical also. If you have a family history of cardiac cardiac problems, you may get it likely in future, but so you need to follow good lifestyle to avoid it. How to improve stress? If your stress is high, you need to recover well. Okay, suppose your training loads are high, that is causing more of physical stress. You need to follow good recovery modes. After exercise, it is mandatory, daily 7 to 8 hours sleep hona chahiye. You can take hot showers. You can do meditation. You can, eat dark chocolate. It is also proven to reduce the stress. So these modes you can try. You can think about contrast baths, sauna baths, that will help you in recovery. See, there is no diet plan. I can't give you diet plan. Basically, I'm a biochemist, so I can't give any diet plan. You can ask nutritionist regarding this. Any other doubt? Recording stopped. So if you have any further questions, you can ask during the discussion class. If that is okay with you, I will end the session. Fine. Thank you so much. Please watch the videos because this topic itself is very lengthy. So I made it very superficial. So you will definitely get the knowledge if you see the video. What is CRP? CRP means C-reactive protein. Fine then. Thank you all.